अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशमीर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खबरन पे। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर रोड लागनस मज नाकाम, भारत चीन रिश्ते मजबूत बनाने हवाले सफारती सतह पे कोशिश जारी। SJ शंकर राजौरी वाकस मज मरन वाले हिंद आखिरी रसूमात अदा करनस मज लूकन हिंद बड़ी तादादन शिरकत। तो जम्मू मज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मज हालात बेहतर बनावनस मज नाकाम, वकार रसूल वानी। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। मरकजी वजीर खारजा SJ शंकरन वोनमुत पाकिस्तान दहशतगर्दी हुंद मरकज तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनियास मज यह मालूम ये जन तमो चीनस सत भारतीय रिश्तस हवाले कत करान वोन यम सात मुहादिच खिलाफ वर्जी सपदन तम सात दशवनी मुल्कन मज मुस्तकरी वुचन ताहम सफारती सतह पे मुस्तकरी दूर करने हवाले कोशिश जारी। Because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. Because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of so course sometimes when we talk, of course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, you know, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? I think the world has to be concerned that there is terrorism going on and the world often looks away. The world often feels it's not my problem because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terror. I think there's a larger concern which is based on our experiences. The concern is that we had agreements with China not to mass forces in our border areas. And they have not observed those agreements, which is why we have the currently tense situation that we do. We had an agreement not to unilaterally change the line of control, which they have tried to unilaterally do that. So there is, I think, a perception that we have which derives directly from our experiences. Now, where else the status quo may change or not change, you know, I would hesitate as a foreign minister to predict publicly. I may have my own views and assessments. But I certainly can share my experience, and my experience is that written agreements were not observed, that we have seen levels of military pressure which in our view has no justification. राजौरी वाकस मज ये दोन बचन सान 6 नफर जांबाग सपद तत आज इज्तिमाई तौर जांबाग सपदमित नफरन हिंद आखिरी रसूमात अदा करना आमत यथ मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर ये जन NIA टीम तरफ आज इलाको दौर करना आव यथ दौरान वाकस हवाले जानकारी हासिल करने सलाह लूकन सत टीमस में शामिल मेम्बरों तरफ कदबात करना आय यह कत बावन लायक ये वाक़ पेश इन सत इलाकस मज हालात कशीद वुचन तत रात LG मनोज सिन्हा सिंद दौर पत इलाकस मज हालात बेहतर वुचन ताहम लूकन मज वाकस हवाले नाराजगी वुचन आम जन तमाम सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों तरफ अमि वाक़ मजम्मत करान वन आव यथ वाक़ अंजाम दिन बुजदिली तो अमि खुतस मज भाईचारा जख वात कोशिश करने यस जन कुन सूरतस मज कामयाब बनाने यह यपर भारतीय जनता पार्टी रियासती सदर रविंदर रैनाहन अत मौकस पे
पाकिस्तान मजम्मत करान वोनमुत ज पाकिस्तान तरफ जम्मू कश्मीर मज अमन अमान खराब करने कोशिश बदस्तूर जारी। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह, अत्याचार किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर ढांगरी के कातिलों को सूद समेत सजा देंगे, सूद समेत इस नरसंहार का बदला लेंगे। इस पाप, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। रजौरी और पुंछ के लोग हों, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के लोग हों, जम्मू, सांबा, कठुआ के लोग हों या वादी कश्मीर के लोग हों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों से पाकिस्तान के अत्याचार सहे, जुल्म सहे, पाप सहे और हमेशा डटकर पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया, मुकाबला किया। आगे भी हम सबको मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के, क्या कश्मीर के, हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी से, इस आतंकवाद से, इन अमन के दुश्मनों से, इंसानियत के दुश्मनों से, इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों से हमको मिलकर लड़ना होगा। गोली ये नहीं देखती कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई जम्मू का है, रजौरी पुंछ का है, कि डोडा किश्तवाड़ का है, कि कश्मीर का है। गोली इंसान का खून बहाती है। सबको मिलकर इस जंग को लड़ना पड़ेगा। आप सब ने देखा जम्मू मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान राजौरी वाकस हवाले अफसोसुक इजहार करान पार्टी हिंद रियासती सदर वकार रसूलन वोन ज खसूसी दर्जा खत्म करने पत मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज अमन अमान कायम करने दावो कर ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुश्न। जो कल डांगरी रजौरी में वाक़ा पेश आया, जहां हमारे एक ही कम्युनिटी के 6 लोग, एक बच्चा, मासूम बच्चा समेत शहीद हुए, तो हम सबको बहुत दुख है उस वाक़े का। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम उस वाक़े की कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और सरकार को, प्रशासन को ये कहते हैं कि जो आपने हमें वादे दिए थे 2014 में कि हम जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से मुक्त करेंगे, और जो पार्लियामेंट में आपने एक स्पीच दी थी कि हम नया कश्मीर देंगे जिसमें कोई हादसा नहीं होगा, कोई मिलिटेंसी का इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन अब नए कश्मीर की बात छोड़ो, अब तो जम्मू तक के मिलिटेंसी की जो लहर है, टेररिज्म जो है, जम्मू भी पहुंच गया। आपने देखा कुछ दिन पहले सिद्रा इंसिडेंट हुआ, जहां 3 टेररिस्ट मारे गए, और अभी जो रजौरी डांगरी में वाक़ा पेश हुआ, ये मैं सीधे कहूंगा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और आप देखिए कि रात को हमारे लोगों की हत्या की जा रही है और मिलिटेंट भागने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद सुबह उसी जगह पे आईईडी ब्लास्ट होता है। क्या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी लापरवाह हो गई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह हो गई है कि जहां पे इंसिडेंट हुआ है, क्या वहां पे सर्च नहीं हो सकता था? वहां पे बम स्क्वाड नहीं भेजा जा सकता था ताकि मजीद जाने ना जाया हो जाए, मजीद लोग जख्मी ना हो जाए?
तो ये सीधे सीधे जो है इंटेलिजेंस फेलियर। नाजरीन कश्मीर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ।